This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আম্বেদকর ইস্যুতে কংগ্রেসের মিছিল ঘিরে এন্টালিতে ধুমধুমার। পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাকর্মীদের ধস্তাধস্তির ছবি শুরুতেই দেখাবো আপনাদের। আম্বেদকর ইস্যুতে কংগ্রেস প্রথম থেকেই ময়দানে নেমেছে। আজকে এই মুহূর্তে যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, এন্টালিতে ধুন্ধুমার, কংগ্রেসের মিছিল ঘিরে এই ধুন্ধুমার, পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাকর্মীদের ধস্তাধস্তি, এবং এই ইস্যুতে আজকে আমরা সংসদেও দেখেছি কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা তারা যখন কথা বলছিলেন তখন রীতিমতো সংঘাতের একটা আবহ তৈরি হয়। এই মুহূর্তে এন্টালের ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। এন্টালিতে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের বচসার ছবি দেখাচ্ছিলাম আপনাদের। ইস্যু কি ছিল? আম্বেদকর ইস্যু। আর এই আম্বেদকর ইস্যুতে আজকে বেনজির সংঘাত দেখলাম আমরা সংসদেও। সংসদ চত্বরে কংগ্রেস এবং বিজেপি সাংসদদের মধ্যে তুমুল ধস্তাধস্তি হলো, ধাক্কাধাক্কি হলো। আহত হলেন দুজন বিজেপি সাংসদ। মাথা ফাটলো বালেশ্বরের বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সারঙ্গীর, আর জখম ফারুকাবাদের বিজেপি সাংসদ মুকেশ রাজপুত। বেনজির লজ্জাজনক, গণতন্ত্রের মন্দিরেই রক্তারক্তি। বুধবার থেকেই অমিত শাহর বিরুদ্ধে আম্বেদকর অবমাননার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার সংসদে সেই বিক্ষোভ ঘিরে তুলকালাম। সংসদ চত্বরেই সম্মুখ সমরে কংগ্রেস বিজেপি সাংসদরা। দুপক্ষের মধ্যে তুমুল ধস্তাধস্তি, ধাক্কাধাক্কি। আহত দুই বিজেপি সাংসদ। মাথা ফাটল বালেশ্বরের বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সারঙ্গীর। জখম ফারুকাবাদের বিজেপি সাংসদ মুকেশ রাজপুত। বালেশ্বরের বিজেপি সাংসদের অভিযোগ, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বিজেপি সাংসদ মুকেশ রাজপুতকে ধাক্কা মারেন। সেই ধাক্কার চোটে তিনি প্রতাপ সারঙ্গীর ওপর পড়ে যান। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। রাহুলের বিরুদ্ধে অভব্যতার অভিযোগও তুলেছেন বিজেপির মহিলা সাংসদ এস ফানুন কোনাক। लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग, ये ऐसे नहीं होता। एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को। পাল্টা লোকসভার বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, তাঁকে সংসদে ঢুকতে বাধা দিচ্ছিলেন বিজেপি সাংসদরাই। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। तो वो हुआ है, हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। বিজেপি সাংসদদের বিরুদ্ধে তাঁকে ধাক্কা মারার অভিযোগ তুলে লোকসভা স্পিকারকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খার্গে। জ্যোতির্ময় কর্মকারের রিপোর্ট, TV9 বাংলা। আম্বেদকরকে অপমান করেছে বিজেপি, ক্ষমা চাইতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। আম্বেদকর ইস্যুতে আমরা প্রতিবাদ জানাতে গেলে লাঠি নিয়ে বাধা দেয় বিজেপি। কে দাবি করছেন কথা? রাহুল গান্ধী বলছেন। सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है, और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। ये मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं।
আম্বেদকর ইস্যুতে আজ সংসদে তীব্র গোলমাল এবং একটু আগেই আমরা দেখেছিলাম রাহুল গান্ধী মল্লিকার্জুন খাড়গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছে বিজেপি। ऐसा व्यवहार किया जाएगा क्या? उनके इतने निकट पहुंचे कि वो असहज हो जाएं, कहें अरे ये धरती वो धरती जहां कहा गया यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मां बहन और बेटी का सम्मान भारत की प्राथमिकता रही है। और मैं तो शासकीय कार्यक्रमों में जब भी जाता हूं बेटियों के पैर धोता हूं, लेकिन महिला आदिवासी महिला सांसद के साथ ये व्यवहार कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या? क्या हो गया है राहुल गांधी को? क्या हो गया है कांग्रेस को? और इसके बाद 2 बजे जब हम लोकसभा में पहुंचे तो कांग्रेस के सांसदों ने सारी मर्यादा तोड़ दी, अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ गए। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ जाए सांसद। आसंदी की मर्यादा को पैरों तले रौंदा गया है। आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान को कुचला गया है, डेमोक्रेसी को कलंकित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। और इसके लिए देश उन्हें माफ नहीं कर सकता। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आज जो व्यवहार किया है आपने, क्या वो सभ्य और शालीन व्यवहार था? कि ये भारत के संस्कार है? कि ये भारत का स्वभाव है? क्या ये भारत का सोच है? क्या ये भारत का व्यवहार है? भारत कभी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकती है। गैर भारतीय आचरण किया, गैर भारतीय। मैं तो अचंभित हूं। अभी तक हम संसद में अगर उम्मीदवार का चयन करते थे तो कौन जीतेगा, लोकप्रिय कौन है और कौन ढंग से तथ्यों और तर्कों के साथ संसद में अपनी बात रखेगा। लेकिन कांग्रेस तो धारा बदल रही है। शारीरिक ताकत का प्रयोग होगा अब संसद में। पहलवान जाएं, गुंडे जाएं, उठा के पटक के फेंकने वाले जाएं। किस दिशा में कांग्रेस लोकतंत्र को ले जा रही है? यह केवल अशोभनीय नहीं है, केवल निंदनीय नहीं है, शर्मनाक है। और मेरा सिर तो शर्म से झुक गया। आज हमारे सांसदों ने इसकी शिकायत भी की है, कंप्लेंट भी की है, और जो उचित और वैधानिक कार्रवाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। धन्यवाद। हाँ, देवेंद्र जी। महिला का सम्मान भारतीय संस्कृति में और संस्कारों में है। अगर कोई महिला सांसद आदिवासी बहन इस तरह के आचरण की बात करती है तो यह भारत का सोच नहीं हो सकता, और किसी बुजुर्ग को धक्का देना यह भी भारत का सोच नहीं है। नीरज जी। सर, आज जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो आज भी उन्होंने संसद में जो हुआ मकर वार्ता उसकी कोई चर्चा नहीं की, बल्कि वो पुराना राग वही अदानी के विषय को क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनसे ये और पूछना चाहता हूं कि हमारे सांसद उनके बीच नहीं गए थे, वो मकर द्वार से बीच में से क्यों गुजरे, इसका जवाब तो दे। क्या क्या सोच के आए थे? जतिन जी। सर, वो कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो अम्बेडकर का इशू वो रेज कर रहे हैं, जो अदानी का इशू, कह रहे हैं आप डिस्ट्रैक्ट। अच्छा, मारो तुम, धक्का तुम दो, पीटो तुम,
असभ्य व्यवहार तुम करो और आरोप हम पे लगाओ। पीयूष जी। सर, जो आरोप आज बीजेपी राज्यसभा महिला सांसद ने लगाया, उसके बाद कांग्रेस का भी जवाब आया। हिबी एजेंट जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ खड़े थे और जिस तरह की बातें राज्यसभा सांसद द्वारा कही जा रही है वो निराधार है, वो पूरी तरह से झूठ है। भारतीय महिला कभी इस तरह के, और विशेषकर सांसद, आदिवासी सांसद, कभी इस तरह के आरोप, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। বিজেপির বক্তব্য আপনাদেরকে শোনাচ্ছিলাম। আজ সংসদে বেনজির সংঘাতের ছবি দেখেছি আমরা। অধীর রঞ্জন চৌধুরী তার বক্তব্য পেয়েছি, শুনুন। ভারতবর্ষে বিজেপি পার্টি তাদের আক্রমণের একটাই লক্ষ্য কি, রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, এখন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, সঙ্গে কংগ্রেস এবং গান্ধী পরিবার। যত বেশি আক্রমণ রাহুল গান্ধী আদানি বিরুদ্ধে করেছে, তত বেশি আক্রমণ রাহুল গান্ধী বিরুদ্ধে বিজেপি সরকার করছে, মোদানি করছে। আর সেই মোদানিকে পরোক্ষে মদত দিচ্ছে, সমর্থন করছে আমাদের দিদানি। এটা যেন বাংলার মানুষ লক্ষ্য করে।